Good morning, dear students. How are you? I hope you all are fine at your home. Myself, Mahesh Vaishnav, and I will teach you science subject. As you all know that after a long break, these e-learning classes are now live again, and I have come to know that the explanation of chapter first and second has already completed in science subject. But in a short, still once I want to explain it, and then we will complete the remaining exercise questions from textbook as well as in our workbook. There is a workbook, you have already such type of workbook. We also discuss the question answers from this workbook also. So students, in our first chapter, that is nutrition in प्लांट न्यूट्रिशन के बारे में इसमें बताया हुआ है. प्लांट्स एंड एनिमल बहुत नीड न्यूट्रिशन to complete different activities of their body and growth and development. So first thing is here the word nutrient. What are nutrient? Nutrients are the component of food which are necessary to our body to conduct different function of our body. And what about the nutrition? Nutrition is the process of utilizing the food to get energy for growth and development of our body. This is called nutrition. तो न्यूट्रिशन की ज़रूरत प्लांट्स को भी है और एनिमल्स को भी है. तो इस लेसन के अंदर ओनली प्लांट न्यूट्रिशन के बारे में डिस्कशन किया गया है. फर्स्ट थिंग, मोस्टली all plants are green, and green plants can prepare their own food by the process of photosynthesis. You know it very well. photosynthesis process में sunlight, water, carbon dioxide, ये सारे raw materials को use करके plant can prepare their own food. But animals cannot prepare their own food because they are heterotrophs, and they completely depends on plants for the requirement of food. But in this chapter, different mode of nutrition are also explained regarding plants all only. प्लांट्स के अंदर सारे मोस्टली जितने भी प्लांट्स हैं वो सारे ऑटोट्रॉप्स ही है. और ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब ऑटो मीन्स अपने आप, ट्रॉप्स मीन्स फूड प्रिपेयर करने वाले. ऐसे प्लांट्स जो अपना फूड अपने आप प्रिपेयर करते हैं दे कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स. बट in this chapter we also discuss about some heterotrophic plants. Heterotrophic plants means they have different mode of nutrition, like some are saprotrophs, some are parasites. Different mode of nutrition is explained in this chapter. So uh, autotrophic mode of on your screen you can see that different mode of nutrition on page number 5. सेप्रोट्रोपिक हेट्रोट्रोपिक जो प्लांट्स हैं उनके अंदर अलग अलग कैटेगरी बनाई हुई है मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अकॉर्डिंग. फर्स्ट कैटेगरी जैसे चैप्टर में आपके मेंशन है सेप्रोट्रोपिक प्लांट्स. सेप्रोट्रोपिक प्लांट्स दैट डिराइव देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मटेरियल. जो मटेरियल प्लांट्स एंड एनिमल बॉडीज आफ्टर द रेन, फॉरेस्ट के अंदर बहुत सारे प्लांट पार्ट्स गिरे हुए रहते हैं, और वो धीरे धीरे जब उनकी बॉडी डिकम्पोज होती है तो उनके ऊपर कुछ मशरूम और दूसरे ऐसे कुछ प्लांट ग्रो करते हैं और उन डेड और डिके मटेरियल से अपना फूड गेन करते हैं. सच टाइप ऑफ कैटेगरी इज कॉल्ड सेप्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. सेकेंड वन इज पैरासाइटिक. पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर some plants are completely depend on other host plant for the requirement of food. Like example Cuscuta amarbale. Cuscuta amarbale plant ऐसा है जो किसी दूसरे प्लांट पे रहता है और उससे ही फूड गेन करता है. Cuscuta amarbale एग्जाम्पल है. थर्ड वन कैटेगरी दैट इज insectivorous plants. Although insectivorous plants have green pigment chlorophyll in it, but they require some nitrogenous substance. For the requirement of this they eat the insect. कुछ ऐसे इंसेक्टिवोरस प्लांट्स है लाइक पिचर प्लांट. आपने बुक के अंदर डायग्राम देखा होगा, इस डायग्राम को आप देखिए ध्यान से. ये पिचर प्लांट जो है, पिचर प्लांट दैट इज इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, although it prepare its food by the process of photosynthesis, but for getting the to fulfill the requirement of nitrogenous substance,
इट टेक इंसेक्ट, ये इंसेक्ट को खाता है। इसका जो लीफ है आप डायग्राम में देख रहे हैं, ये लीफ एक पिक्चर मतलब एक मटकी, एक घड़े की तरह शेप लेता है और इंसेक्ट इसमें ट्रैप हो जाता है और इंसेक्ट की बॉडी को वो डिकम्पोज करके इंसेक्ट की बॉडी में से नाइट्रोजीनियस सब्सटेंस को वो निकालता है। दिस इज द प्रोसेस that plants are used. Then next, some plants like mushroom and fungi, I already explained you, these are categorized as saprotrophic mode of nutrition, bread, mold and all the things. And insectivores हो गया, insectivorous plants, saprotrophs, and one more is symbiotic relation. Symbiotic relation means when two organisms live together and if they share their food and shelter, such condition is called symbiosis. इसका एग्जाम्पल है लाइकेन। लाइकेन एक सिम्बायोसिस रिलेशन का एग्जाम्पल है जिसमें टू ऑर्गेनिज्म साथ में रहते हैं। लाइक एग्जाम्पल फर्स्ट इज फंजाई एंड सेकंड इज एल्गी। एल्गी और फंजाई दोनों एक साथ रहते हैं। एल्गी, यू कैन नो दैट, यू नो इट वेरी वेल दैट एल्गी कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस and fungi, but fungi is categorized as a saprotrophic mode of nutrition. fungi ग्राउंड से मिनरल्स और ज़रूरी सप्लीमेंट्स को लेकर फंजाई उसको एल्गी को प्रोवाइड करता है और बदले में एल्गी इन मिनरल्स और सनलाइट की प्रेजेंस में फूड प्रिपेयर करता है और वो प्रिपेयर फूड वापस किसको सप्लाई करता है, फंजाई को। इस तरह से दोनों एक दूसरे की हेल्प करते हैं। सच टाइप ऑफ mode of nutrition is called symbiosis. And last topic of your chapter is how nutrients are replenished in the soil. इसका मीनिंग ये है, फार्मर्स कंटिन्यू क्रॉप प्रोडक्शन करता है एंड बाय द प्रोसेस ऑफ दिस the minerals and the necessary supplements are continuously ejecting from the soil and the amount of these minerals are reduces. मिनरल्स और बहुत सारे दूसरे इम्पोर्टेंट जो आपके सब्सटेंस है जिनका अमाउंट सॉइल में रिड्यूस हो जाता है, उसको वापस फुलफिल करने के लिए फार्मर्स सॉइल के अंदर मैन्योर फर्टिलाइजर्स को यूज़ करता है ताकि वापस उसको रिप्लेनिश किया जा सकता है। इसको रिप्लेनिश बोलते हैं। बट सम प्लांट्स हैव देयर ओन कैपेसिटी ऑफ रिप्लेनिशमेंट। लाइक एग्जांपल ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट। लेग्यूमिनस प्लांट का मतलब होता है ऐसे प्लांट्स जिनका फ्रूट एक पॉड होता है। पॉड मतलब फलीदार प्लांट्स, फलीदार फ्रूट वाले जो प्लांट्स हैं, लाइक एग्जांपल पी, ग्राउंडनट, beans and all types of pulses, they are categorized as leguminous plants. Leguminous plants की roots के अंदर एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है राइजोबियम बैक्टीरिया, and that rhizobium bacteria convert the nitrogenous atmospheric nitrogen into soluble form. एटमॉस्फेयर के अंदर जो नाइट्रोजन है उसको प्लांट्स डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते, उसको पहले सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए राइजोबियम बैक्टीरिया लेग्यूमिनस प्लांट्स की रूट्स में रहता है और वो उस नाइट्रोजन फ्री नाइट्रोजन जो एटमॉस्फेयर की है उसको सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट करके प्लांट्स की रूट को प्रोवाइड करवाता है और बदले में प्लांट भी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से जो प्रिपेयर्ड फूड है उस प्रिपेयर्ड फूड को वापस राइजोबियम बैक्टीरिया को भी प्रोवाइड करता है। इस तरह से ये भी एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का ही एग्जांपल है। टू ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर एंड शेयर देयर फूड एंड शेल्टर। राइजोबियम बैक्टीरिया इस तरह से सॉइल के अंदर नाइट्रोजीनियस सब्सटेंस को बार बार रिप्लेनिशमेंट करता रहता है। सो दिस इज द सो स्टूडेंट्स, दिस इज योर चैप्टर and in our next video I will explain you your remaining exercise questions. You have to do these exercise questions in your notebook. So students, thank you, stay safe and stay calm.